تعلیم کے ساتھ امور خانہ داری سکھائیں. سسرال میں تعلیم سے زیادہ کام دیکھا جاتا ہے. اگر بچی گھر میں کام نہیں کر رہی ہے تو سسرال میں بھی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے کام اس کے لیے مشکل ترین ہوگا. اس لیے گھر میں بیٹی کو کام کرنے کی عادت ڈالیں. بچوں کی غلطیوں کو چھپائیں نہیں، اصلاح کریں، نگرانی کریں. کفایت شعاری بھی سکھائیں. کم وسائل میں کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے یہ تعلیم دینا بھی ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اس کا IPC بات کرنے کا طریقہ، افہام و تفہیم، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے بچوں میں پیدا. جو بھی پرابلم ہے، چاہے وہ اپنے وائف سے ہو یا وائف کو اپنے ہسبینڈ سے ہو، آپ اس کو بالکل ٹائم نکال کے کمیونیکیشن گیپ نہ کرتے ہوئے آپ بالکل اپنے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آپ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ اس پہ باہر کہیں نہ جائیں. آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے، اور جب آپ ایکسٹرا میٹل افیئر میں پڑیں گے ہی نہیں تو وہ طلاق تک نوبت جائے گی نہیں، ابتدا ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کا انجام بھی آپ نے ہونا. کہا کہ ضروریات کی تکمیل نہیں ہونے پر تنازعات شروع ہوتے ہیں. مگر میں ناظرین اور آپ لوگوں سے خاص طور سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، کیا یہ ایک سچائی ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہونے پر تنازعات شروع ہوتے ہیں یا شوق پورا نہیں ہونے پر؟ ضروریات اگر ہماری دو الگ چیز جی ضروریات اگر ہماری 2-3 جوڑے کپڑوں میں پوری ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا شوق ہے کہ 10 جوڑی ہونی چاہیے. ضرورت یہ ہے کہ 2 جوڑی چپل میں کام چل جائے، لیکن شوق یہ ہے کہ شادی کا الگ ہونا چاہیے، سسرال کا الگ ہونا چاہیے، میکے کا الگ، فرینڈشپ کا الگ، ہے نا. ضرورت ہماری اگر 5,000 کے برقعے میں پوری ہو رہی ہے، شوق یہ ہے کہ میرا 10,000 ہونا. میں اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہر ایک کی ضرورت کی تکمیل اور پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ضرورت کی، لیکن شوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے ایسے تنازعات میں اگر پولیس تک معاملہ گیا تو پھر سدھرنے بڑا مشکل بڑھ جائے گا بالکل، اور دونوں طرف سے یہ ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جب کوئی میٹر دونوں طرف کے عوام کا ذمہ داران کی ناک کا مسئلہ بن گیا تو اب تو ناک کٹے گی، گلے کٹیں گے، رشتے کٹیں گے، اور وہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آئے گا. اور یہ ہوگا کہ پہلے پولیس تک کون گیا، کیوں گیا، کیسے گیا، آنا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارا نام پولیس تک تم نے کیسے. بہرحال تو جانبین سے اگر لوگ بیٹھ کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری، مہیلا منڈل تک پہنچنے سے پہلے ختم کر لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن ایک بار پولیس تک اگر میٹر چلا گیا تو شوہر اس بیوی کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اور شوہر اگر گیا تو بیوی کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی. تو یہ بہت بڑا ٹاپک تھا آپ کا، فریدہ میڈم آپ نے کور کیا. ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، عالم TV کے YouTube چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے. اہلیان شہر سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بیچ میں جو ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یقیناً وہ اپنے آکوپیشن اور اپنے علاقے اور اپنے اسٹڈیز کے اعتبار سے مرجع خلائق ہیں. اور آج جس موضوع کو لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے شہر کا ایسا سلگتا ہوا، ایک ناسور بنتا ہوا موضوع ہے کہ ہر ایک کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. وہ موضوع ہے بھیونڈی شہر میں طلاق کی بڑھتی شرح، اسباب اور حل. بغیر آمدنی والے شوہروں کی بیوی کو اہل خانہ سنبھالیں. وقت پر شادی کرنا چاہیے. عمر اور تعلیم میں غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. بیٹی اگر اپنے سسرال میں پریشان ہے تو بہو کو گھر میں پریشان نہ کریں. 95% طلاق 2 برس کے اندر ہو رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ امور خانہ داری سکھائیں. سسرال میں تعلیم سے زیادہ کام دیکھا جاتا ہے. صبح جلدی اٹھنے کی مشق کریں، رات میں جلدی سونے کی بھی مشق کریں. اگر بچی گھر میں کام نہیں کر رہی ہے تو سسرال میں بھی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے کام اس کے لیے مشکل ترین ہوگا. اس لیے گھر میں بیٹی کو کام کرنے کی عادت ڈالیں. بچوں کی غلطیوں کو چھپائیں نہیں، اصلاح کریں، نگرانی کریں. کفایت شعاری بھی سکھائیں. کم وسائل میں کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے یہ تعلیم دینا بھی ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اس کا IPC بات کرنے کا طریقہ،
अफ़हाम व तफ़हीम, हालात को समझने की सलाहियत अपने बच्चों में पैदा करें। ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं अहलियान शहर से आज के इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारी ये डिस्कस जो बढ़ते तलाक के ऊपर है, ये एक डॉक्यूमेंट्री होगी शहर के लिए, एक बहुत बड़ा हमारे लिए कि हम कैसे रोक सकते हैं बढ़ती तलाक को। इंशाअल्लाह आज के डिस्कस से एक बहुत बड़ा मैटर हमारे सामने आने वाला है और कामयाब डिस्कस होगा। तो जो भी सामीन नाज़रीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इन बातों को सुनने और देखने के बाद आप अपने घर में, अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों में, या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या स्कूल और कॉलेज से वाबस्ता हैं तो अपने बच्चों, अपने तलबा तालिबात, अपने रिश्ते और ख़ानदानों में भी इन उमूर को सुनने के बाद वो चीज़ें ज़रूर अपनाएं जो आज यहाँ पर डिस्कस में आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह इससे खैर और फलाह की उम्मीदें की जा सकती हैं और बढ़ती तलाक की शरहें इंशाअल्लाह कम करने में आज का ये डिस्कस मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले हमारी आज की इस लिस्ट में एक उन्वान है जो एक हम ये कह सकते हैं एक बड़ा मौजू है तलाक के बढ़ते असबाब का, वो है शमा सुहेल पठान से मुताल्लिक़। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले शमा सुहेल पठान वो अपना मौजू भी बताएं और क्या क्या रीज़न है उसके और उसको कैसे रोका जा सकता है, आप उस पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा मौजू ये है कि तलाक होने का जो एक अहम रीज़न है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द या गैर ख्वातीन से ताल्लुकात रखना, ये रीज़न है। अब ये रीज़न पैदा कैसे होते हैं, इसका है कि आम जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें बेसिक नीड नहीं पूरी होती कुछ घरों में, और कुछ घरों में क्या होता है कि ख़वातीन को बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, जो अदर माहौल में देखकर वो अपने आप को भी वैसा चाहती है कि हमारे घर में वैसे माहौल होना चाहिए। उसके अलावा हर किसी के पास, मर्द हो या ख़वातीन है, दोनों के अंदर की ह्यूमन फीलिंग्स होती है। और एक उसका रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन मतलब शोहर अपने वाइफ को वक्त नहीं दे पाते हैं और बीवी अपने शौहर को वक्त नहीं दे पाती है, तो उनकी वजह एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और बहुत सारे मसले मसाइल, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के मसाइल, और अगर वो अलग सेपरेट भी रहते हैं तो फिर फाइनेंशियली बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से, तो अगर उनको बाहर किसी से जो उनको वो चीज़ ज़रा सा भी अफेक्शन मिलता है तो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। तो ये रिश्ता है जो बिल्कुल हमें कायम नहीं करना चाहिए। और मैं इस पे अगर रोकथाम किया जाए तो इसका सबसे ये कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो अपने वाइफ से हो या वाइफ को अपने हस्बैंड से हो, आप उसको बिल्कुल टाइम निकाल के कम्युनिकेशन गैप ना करते हुए आप बिल्कुल अपने ठंडे दिमाग से बैठ के डिस्कस करें कि आप मुझे ये तकलीफ है, आप उस पर बाहर कहीं ना जाए, आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करके, और जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेंगे ही नहीं तो वो तलाक तक नौबत जाएगी नहीं, इब्तिदा ही नहीं होगी, तो फिर उसका अंजाम भी होगा नहीं। तो मैं इस पे बात करूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने अपने सजेशन और आपने अपने स्टडी सामने रखी है कि एक से जायद पर शौहर का या बीवी का नजर रखना, शौहर की किसी कमी को देखते हुए या बीवी के अंदर कोई कमी है तो शौहर की नजरें इधर उधर भटकती। तो बहुत अच्छा एक रीज़न था। इसके तदारुक के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम तालिब इल्मी के दौर में ही बच्ची या बच्चों की तरबियत ऐसी की है हमने कि उसी पे इक्तिफा और उसी पे जज़ा और सज़ा है ना, जो मुक़द्दर में था वो आपको मिला है, और थोड़ी सी सख्ती या थोड़ी सी तंगी को बर्दाश्त कर लेने में उसका अज्र जो आखिरत में अल्लाह के यहाँ मिलने वाला है और यकीनन वो मुसल्लम है। तो बहुत अच्छा रहा आपका ये। अब मैं गुजारिश करूँगा दूसरा टॉपिक जो हमारे यहाँ जो ये एक बड़ा टॉपिक हो सकता है, बड़ा उन्वान हो सकता है, और मैंने भी जो स्टडीज़ की लोगों से मिलने के बाद, वो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू तनाज़ा। इस पर आज हमारे बीच में फरीदा सैयद जो यूनिसेफ की एक प्रोग्राम की भिवंडी शहर में प्रोग्राम मैनेजर कोऑर्डिनेटर हैं। तो फरीदा सैयद मैडम जी, आपका टॉपिक और आपकी गुफ्तगू आप शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मुझे बोलना है घरेलू हिंसे के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस में अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि फैमिली का टॉर्चर होना, जो घरेलू हिंसा है, जैसे सास है, ससुर है, या फिर
ननंद है या देवर वगैरह है। काफी जगह पे पहले दहेज को लेके बहुत ताने मारना वगैरह होता था, मगर मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम लोग चेंज हो रहे हैं, तो इतनी चीजें नहीं होती होंगी या कहीं होती भी होगी। तो ये हमको अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं दहेज लेना गलत है, किसी को ताना मारना गलत है, किसी को इंसल्ट करना गलत है, लेकिन हम लोग अपने आप को बदल नहीं रहे। हम जानते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हमारी ये गलती है। और जब हम समाज सुधारने की बात करते हैं तो हमको खुद को बदलना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों में। तो डोमेस्टिक वायलेंस में घरेलू हिंसा है, सेक्सुअल अब्यूज है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो जरूरतें पूरी नहीं होती वो एक रीजन है। मारपीट करना जो है पार्टनर का, लाइक हस्बैंड है या कोई और भी घर में है। पहले तो आप लोगों ने सुन चुके होंगे कि पहले कई बार ऐसे भी हम लोग सुने हैं कि घर वाले जला दिए वगैरह वगैरह। काफी सारा सुन चुके हैं आप लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं। और इस सारी चीजों को गवर्नमेंट ने एक कानून भी बनाया है कि जब जुल्म आप पे होता है तो आप बर्दाश्त ना करें, आप आके पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं। या लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए 1091 कोड है जो डायल कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो मैं चाहती हूँ कि ये पुलिस वगैरह के चक्कर में ना पड़े, हम लोग घर में बैठ के जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन करें। हमें बातें करना, उसके ऊपर बैठ के सोचना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब कोई मामला बिगड़ जाता है या फिर मसला बिगड़ने लगता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होके और उस टॉपिक को सोल्यूशन करने के बजाय हम चुप हो जाते हैं या चिल्ला के चले जाएंगे। जैसे शौहर है, घर से चले गए चिल्ला के, या हस्बैंड वाइफ है वो मैके चले गई वगैरह वगैरह, काफी सारे ऐसे चीजें। बट हमें हमारे घर को सुधारने के लिए, हमारे परिवार को सुधारने के लिए उस वक्त हमारे गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उस वक्त मेरी राय ये है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, चाहे वो सास हो, बहू हो, शौहर हो, जो भी हो, आप एक गिलास पानी बैठ कर पिए, आराम से थोड़ा सा अपने माइंड को कूल करें और उसके बाद आराम से सोचे कि ये घर के मामला जो है, माहौल क्यों बिगड़ रहा है, क्या वजह है, क्या इसमें वाइफ की गलती है, क्या हस्बैंड की गलती है। क्योंकि हमारे जो मसले हैं हमको ही सुधारने की बहुत जरूरत है और हम ये सारी चीजें जानते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में हम लोग नहीं इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप कोई काउंसलर के पास जा सकते हैं या फिर कोई जाने माने लोग हैं, इसके ऊपर आपको सलाह दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके घर में आएंगे, आपको सलाह देंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी को शेयर भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका घर के बारे में बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मेरे घर की बात कहीं बाहर ना जाए। तो ऐसे सारे मसले मसाइल है। तो हमें, मेरा ये कहना है कि हमें बैठना चाहिए, पूरे परिवार वालों को जो भी मसला है उस पर बैठ के सोच के कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टॉपिक यकीनन बहुत ज़बरदस्त था और इसमें शायद कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा सबब है तलाक तक पहुंचने का। जी, मैं चाहूँगा, आपने कहा कि ज़रूरियात की तकमील नहीं होने पर तनाज़ात शुरू होते हैं, मगर मैं नाज़रीन और आप लोगों से ख़ास तौर से ये बात शेयर करना चाहूँगा, क्या ये एक सच्चाई है कि ज़रूरियात पूरी नहीं होने पर तनाज़ात शुरू होते हैं या शौक़ पूरा नहीं होने पर? ज़रूरियात अगर हमारी दो अलग चीजें। जी, ज़रूरियात अगर हमारी 2-3 जोड़े कपड़ों में पूरी हो रही हैं, लेकिन हमारा शौक़ है कि 10 जोड़ी होनी चाहिए। ज़रूरत यह है कि 2 जोड़ी चप्पल में काम चल जाए, लेकिन शौक़ ये है कि शादी का अलग होना चाहिए, ससुराल का अलग होना चाहिए, मायके का अलग, फ्रेंडशिप का अलग, है ना। ज़रूरत हमारी अगर 5000 के वर्क़े में पूरी हो रही, शौक़ ये है कि मेरा 10,000 होना। मैं इस बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, हर एक की ज़रूरत की तकमील और पूरा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, ज़रूरत की, लेकिन शौक़ को पूरा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है।
जरूरत हमारा 5,000 के मोबाइल में पूरी हो रही है, लेकिन हमारे पास 25,000 वाला मोबाइल होना ये शौक है। इसी तरीके से दूसरी चीज आपने मैडम बताई कि ये मामला तोड़ते हैं तो क्या एक आपने एक नंबर बताया पुलिस का 1091 लेडीज के लिए डायल नंबर है। ओके, लेकिन तजर्बा ये बता रहा है ऐसे तनाजात में अगर पुलिस तक मामला गया तो फिर सुधरने में बड़ा मुश्किल होगा। बढ़ जाएगा बिल्कुल। और दोनों तरफ से ये नाक का मसला बन जाता है, और जब कोई मैटर दोनों तरफ के आवाम का जिम्मेदारान की नाक का मसला बन गया तो आपको नाक कटेगी, गले कटेंगे, रिश्ते कटेंगे, और वो मसला हल होने में नहीं आएगा। और ये होगा कि पहले पुलिस तक कौन गया, क्यों गया, कैसे गया, आना का मसला बन जाता है कि हमारा नाम पुलिस तक तुमने कैसे। बहरहाल, तो जानिबैन से अगर लोग बैठ करके अफाम तफहीम के जरिए से अपने मसाइल को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, महिला मंडल तक पहुंचने से पहले खत्म कर लें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन एक बार पुलिस तक अगर मैटर चला गया तो शौहर उस बीवी को कभी कबूल नहीं करेगा, और शौहर अगर गया तो बीवी के दिल में हमेशा ये बात रहेगी। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था आपका, फरीदा मैडम आपने कवर किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मेरे ख्याल से 2 खवातीन की राय हम जान चुके हैं। मैं चाहता था कि हम में से हमारे यहाँ पर दोस्त भी हैं और सोशल एक्टिविटीज और समाज की स्टडी और मुताले के अतबार से मैं बुजुर्ग भी कह सकता हूँ। मकसूद अंसारी सर हमारे बीच में मौजूद है। जबरदस्ती की शादी और लव मैरिज प्यार की शादी और जबरदस्ती की शादी, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मैटर है। और तो मैं मकसूद अंसारी सर से कहूंगा, सर प्यार की शादी और ये मौजू आपने क्यों पसंद किया, जबकि आपका दूर दूर रिश्ता प्यार से नहीं है या बहरहाल, लेकिन ये स्टडी और आप तजर्बा है कि ये चीज भी, प्यार की शादी भी तलाक तक पहुंच जाती है, और फिर जबरदस्ती की शादी तो खैर ठीक है। तो मैं चाहूंगा सर आप अपना तजर्बात और अपना मुताला बयान करें। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, मुझे जो मौजू दिया गया है बड़ा सुलगता हुआ मौजू है, वो जबरदस्ती, जबरन शादी कहिए उसको। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में इकराह और जबर नहीं। हमको यहीं से एक सबक ले लेना चाहिए कि कुरान हकीम ने जिस बात का ऐलान कर दिया, अगर उसके खिलाफ वर्जी हम करेंगे तो उसमें नफ़े का कोई सौदा ही नहीं। मुसलमान का यकीन होना चाहिए कुरान हर्फ आखिर है, सोचिए तो दूर हद्दे मंतक़े इदराक से, कीजिए महसूस तो वो है लगे जाके करीब। अल्लाह ताला का मामला, आज साइंस की तरक्कियात जहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से अल्लाह ताला की सोच की इब्तिदा होती है। तो हम अपनी पूरी अमली ज़िंदगी को, मैं समझता हूँ कि अगर शरई कवानीन, शरई कालिब में ढालते हैं या शरीयत के मुताबिक चलते हैं, तो मैं समझता हूँ मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ रही बात जबरन शादी की, दूसरी बात अगर हम समाजी एतबार से भी देखते हैं अगर, तो जबर पे जो चीज़ की जाती है वो उसमें अफहाम तफहीम का मामला नहीं होता। भाई जबरदस्ती आपसे कोई चीज़ कराई जा रही है, मैं राजी नहीं हूँ, मेरे साथ वो चीज़ कराई जाए, तो उसमें ख्यालात में हम आहंगी नहीं हो पाती, रुझानात में यकसानियत नहीं हो पाती। और ये ख्यालात और रुझानात के जो मामलात हैं, ये बढ़ते 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 जब ये अपने इंतहा को पहुंचते हैं तो उसका नतीजा जो है वो तलाक ही होता है, यकीनी तौर पर वो तलाक ही होता है। आज हम पूरे माशरे में देख रहे हैं कि तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब जबरदस्ती हमको किसी बंधन में बांध दिया जाएगा, और जब उस बंधन में हम जबरदस्ती बने तो हम राह फरार अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। भाई आप किसी को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दीजिए, किसी को जबरदस्ती रस्सी में बांध के कहीं उसको रख दीजिए, तो वो तो राह फरार अख्तियार करेगा। और जब दोनों में तालमेल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो राह फरार अख्तियार करेगा और तलाक की नौबत आ जाती है। तो इसके तदारुक के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम पक्के मुसलमान बन जाए। सबसे पहले हम मुसलमान हैं तो नाम के मुसलमान न रहे भाई, अमली मुसलमान रहे हमारा। मैं तो दावे से कहता हूँ हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि अगर हमने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी, अल्लाह के रसूल की बताए हुए तरीकों पर गुजारी,
تو ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس پہ میرا یقین اور انسان کا یقین ہونا چاہیے. اور پھر قرآن نے جہاں کہہ دیا وہاں بات ہی ختم ہو گئی. تو اس طریقے سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جہاں تک ممکن ہو جبر کی سختی سے ممانعت ہے مذہب اسلام میں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین، تو جب قرآن نے کہہ دیا تو جبرن ہم کو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور ویسے بھی زوجین کی مرضی جو ہے وہ لی جاتی ہے، اس کا بھی حکم ہے. اللہ کے رسول نے ایسے کئی معاملات کو منسوخ کیا ہے جہاں پر جبر کیا گیا ہے، تو اس میں زوجین کی مرضی ہونا چاہیے. تو اگر یہ سلسلہ ہو، لوگ قرآن و حدیث کے مطابق چلیں اور اپنی زندگی کو شرعی قالب میں ڈھالیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا. اور جبرن ہم کو شادی وغیرہ کرنی ہی نہیں چاہیے، تو ایک طرح کا ظلم بھی ہے میں سمجھتا ہوں. بے شک. رہی بات یہ لو میرج جس کو ہم انگریزی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں، پیار کی شادی. تو پیار کی شادی کا معاملہ تو ایسا ہے صاحبان کی اس کے دو ادوار میں اس کو تقسیم کروں گا. شادی سے پہلے کا جو دور ہے وہ، اور شادی کے بعد کا جو دور ہے. شادی سے پہلے کے دور میں دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی نہیں رہتے، وہ عاشق اور معشوق رہتے ہیں، محبوب یا محبوبہ رہتی ہیں. اس دور میں محبوب کی نازبرداری کرنے کے لیے، محبوبہ کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے بہت مہنگی کنگھی لے کر صاحب آئیں گے، آسمان کے تارے توڑنے کی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت محبوبہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے صرف کر دیں گے، کتنے طویل سفر پر نکل جائیں گے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، پیار کی شادی ہے، اب وہ شادی میں تبدیل ہو گئی. جب شادی ہوتی ہے تو اب نہ وہ محبوب ہے، نہ وہ محبوبہ ہے، نہ وہ معشوق ہے، نہ وہ معشوقہ ہے. اب یہاں پر میاں اور بیوی کا رشتہ ہو جاتا ہے. اور اب میاں بیوی کے رشتے میں جب گھر میں اخراجات بڑھتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے اور نمک تیل لکڑی کے معاملات آتے ہیں، اب محترمہ کی وہی خواہش، جیسے بھی بتایا گیا کہ وہی شوق، تو اب وہ بیچارہ تو ویسا شوق پورے کرنے سے رہا. اب اس کی حیثیت، اس کی استطاعت تو اتنی اب ہے نہیں کہ وہ بچوں کی فیس ادا کرے، کہ گھر کے دوسرے اشیاء خوردنی اور مشروبات اور معقولات کے معاملات کو دیکھے. تو یہاں سے پھر وہ تنازع شروع ہوتا ہے. عموماً ایسے وقت میں لڑکیاں کیا چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے شوہر کا وہی طریقہ رہے، وہی معاملات رہے جو شادی سے پہلے کا تھا. جب وہ محبوبہ اور محبوب ہوا کرتے تھے، وہ چیز ہونا نہیں ہے. اور اکثر سماج میں میری بات بھی ہوئی ہے مولانا صاحب سے سلسلے میں کہ شادی جو لو میرجز ہیں اس میں اکثریت شادیاں ناکام ہوئی ہیں. میں 100% تو دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اکثریت شادیاں ناکام ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ بھئی شادی کے بعد، ٹھیک ہے میں پیار کا مخالف نہیں ہوں، میں مغل اعظم کا پرتھوی راج نہیں ہوں، لیکن ہم کو شادی کے بعد افہام و تفہیم سے معاملات کو سمجھنا چاہیے. نہ پیار کرنے کا بھی خلاف ہوں، بھئی اگر دیکھیں گے ویسے شرعی اعتبار سے تو وہ بھی غلط ہے، نامحرم ہے، وہ تو وہیں سے بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے. لیکن شادی کے بعد پھر وہاں پر بہت سوچ سمجھ کے دونوں کو کشتی پر چلنا چاہیے، تاکہ آنے والے جو حوادث ہیں، جو طوفان ہیں، اس سے مقابلہ کیا جائے اور طلاق جیسی لعنت سے بچا جائے. اس تعلق سے بس اتنا ہی. بہت بہتر، جزاک اللہ. مقصود سر آپ نے کافی مجرب انداز میں گفتگو فرمائی. سر کی بات کا آغاز ہوا تھا قرآن کریم کے حوالے سے، لا اکراہ لا اکراہ فی الدین. تو یقیناً نکاح بھی دین کا ایک بڑا جز اور حصہ ہے. تو نکاح کے معاملے میں بھی لا اکراہ یعنی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ لو میرج مطلب ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر کے لڑکی لڑکے کا آپس میں رشتہ طے کرنا، یہ لو میرج اکثر یہ سماج میں یہی لو میرج کا مفہوم ہے. ایک سروے یہ بتاتا ہے، ایک مطالعہ یہ کہتا ہے 98% لو میرج ناکام ہوتی ہے. 98% لو میرج ناکام ہوتی ہے. اب دیکھیے جن ماں باپ نے آپ کو زیرو سے لے کر کے 20 22 25 برسوں تک ہر طرح سے خونے جگر دے کر پالا اور پوسا ہے، جب وہ لڑکا یا لڑکی اپنے خونے جگر دے کر پالنے والے ماں باپ نہ ہوئے، ان کی مرضی کو توڑ کر ٹھکرا کر کے اور اپنے چند یہ کہیے کہ چمکتے اور دھڑکتے مناظر کے وہ دریوزگر ہو گئے، ان سے غلام ہو گئے،
अल्लाह उसके रसूल की मर्जी को ठुकरा दिया गया तो भला फिर वो फलाह को कहाँ पहुंचने वाला। फलाह के रास्ते ये बाजे गाजे ढोल ताशे जब ये बारात निकलती है तो न जाने वो हजारों और सैकड़ों जो अपने हाथ पीले करने की उम्मीद में और अपनी ज़बूहाली के बना पर बैठे हुए अपनी उम्रें ज़ाया कर रही हैं बेचारी, उनके दिलों से उनकी जुबान और दिमाग से क्या आह निकलती होगी। यही वजह है कि वो रिश्ते और शादियां नाकाम हो जा रही हैं। बड़े बड़े जहेज के मुतालबे इंसानों की जानें ले रहे हैं आज। यहीं से एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि हर माँ बाप को, समाज के लोगों को जहाँ तालीम पर मेहनत हो रही है वहीं तरबियत, अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन पर वो टॉपिक भी शायद हमारे किसी के हिस्से में आएगा कि आला तालीम याफ्ता की शादी कम तालीम याफ्ता के साथ, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल से ये मौजू है मोमिन शाहीन मैडम का। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल से, टीचर्स की भी आप खद्दो खाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तलबा और तालिबात भी आपके और वालिदैन भी आपकी ज़ेर आतिफत और ज़ेर साया रहती हैं। तो आपसे मैडम दरख्वास्त है कि आप आला तालीम याफ्ता की कम तालीम याफ्ता से शादी क्यों नाकाम होती है, असबाब क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है। आपके सामने मोमिन शाहीन मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन शाहीन है और मुझे जो आज मौजू दिया गया है उसका नाम है आला तालीम याफ्ता लड़की की शादी कम तालीम याफ्ता लड़के के साथ। तो ये बहुत ही संजीदा मौजू है मेरे ख्याल से। मैं जहाँ तक समाज में रहती हूँ तो ये चीज़ देखती हूँ, लड़के जो है ये ऐसा कोई बात नहीं कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है या काबिलियत नहीं है कि उसकी वजह से मतलब पढ़ नहीं पाती, ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं है। लड़के जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत सारे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां होती है, फैमिली का मतलब बोझ होता है, अपने वालिद का हाथ बटाने की वजह से भी बच्चे, मैंने देखे अच्छे अच्छे नंबरात लाने वाले बच्चे भी बीच में से पढ़ाई छोड़कर, लेकिन ये घर में कमाने वाला एक रहता है जिसकी वजह से बच्चा जो है पढ़ाई अधूरी छोड़ के काम में चला जाता है, जिसकी वजह से लड़कों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसके बरक्स जो लड़कियां हैं उनको तो बाहर कमाने की जिम्मेदारी होती नहीं है, तो वो पढ़ती रहती हैं और अच्छे नंबरात लाती है घर के काम के साथ, और उनको गवर्नमेंट की स्कीमें भी मिलती है। इस तरीके से वो पढ़कर आगे बढ़ जाती है ना। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि माँ बाप जो है उनके लिए रिश्ते की तलाश करते हैं कि मेरी जिस तरीके से लड़की आला तालीम याफ्ता है उस तरीके से मुझे लड़का भी मिल जाए। लेकिन हमारे समाज का अलमिया ये है, खासतौर पर हमारी कौम का, इसमें लड़के जो है, हम लोग की समाज में भी बहुत गुर्बत है। लड़के जो है जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ बच्चे जो है सोशल मीडिया की वजह से, बहुत सारे इसके मतलब वो है रुझुआत है जिसकी वजह से बच्चे, लड़के खासतौर पर नहीं पढ़ पाते। तो अब मजबूरन लड़की की उम्र ज्यादा होती रहती है, समाज का प्रेशर आता है वालिदैन के ऊपर, लड़की को भी सुनना पड़ता है, तो मजबूरन जो है पेरेंट्स एक लड़का देखकर वो कम तालीम याफ्ता होता है तब भी उसकी शादी से करा देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि शादी के पहले अगर लड़की मान लो नौकरी कर रही है और जो उसको जहानत है, जो उसको तरबियत दी गई है, उसके दिमाग में चल रहा है, सब बातें अगर वो लड़के के घर वालों को बता दे कि मैं जॉब करूंगी, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शादी कर दी जाती है, उसके बाद वो वहाँ पे जाने के बाद अपने शौहर को जो है वो ये समझती है कि ये तो कम पढ़ा लिखा है और ये हकीर निगाह से देखती है अपनी तालीम की बुनियाद पर, जो कि गलत है। जबकि इस्लाम में ये सिखाया गया है कि शौहर का जो दर्जा है वो बहुत आला है, तालीम उसका मतलब उसके म्यार पे नहीं उसको तोड़ सकते शौहर को, लेकिन वो आला तालीम याफ्ता होते हुए भी ऐसा करती है। अब लड़का तालीम याफ्ता हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर एक अना होती है, मर्द होता है, तो उसे मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें जैसे अपनी मनमानी भी करती है, कहीं मीटिंग में जाती है या कुछ करती है तो अपने शौहर को इत्तला नहीं देती है, बहुत सारे काम अपने हिसाब से करती है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर वो लड़की अपने शौहर से बैठ के डिस्कस करे या घर में बताए, तो मैं जानती हूँ मर्द जो होता है ना ऊपर से सख्त है वो, लेकिन अंदर से बहुत नर्म है, वो उसका सपोर्ट करेगा अगर वो चीज सही रहेगी तो। और अगर जिस चीज का वो सपोर्ट नहीं करा तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है, क्योंकि वो समाज में रहने वाला बंदा है, उसकी नजर हर बारीक चीज पर है और वो जानता है चीज गलत, तभी आपको मना करेगा।
और ये लड़की के अंदर सब खूबी होनी चाहिए। तो जो लड़कियां जो है, जो कमाऊ लड़कियां होती है, तो माँ बाप तो उनकी शादी कर देते समाज के दबाव से, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहते कि भाई लड़की वहाँ पे रहे। अब थोड़ा भी इख्तलाफ होता है तो उसमें कूद कर पहुंच जाते हैं, है ना, और दामाद को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं सिर्फ तालीम की बुनियाद पर, और सोचते हैं कि लड़की घर वापस आ जाए। इस तरीके से अपनी बच्ची को जो है अपने घर लेके चले जाते हैं, और फिर उस तरीके से मसला बढ़ते जाता है। अब लड़का कम तालीम याफ्ता हो या ज्यादा, उससे कोई मैटर नहीं करता। इस्लाम में इसका कोई वो मेयार नहीं है, कहीं इसका कोई रुझान भी नहीं है। लेकिन ये अगर लड़की पढ़ी लिखी और ये बात को नहीं समझ पा रही है तो फिर उसका घर टूट जाता है, मसला तलाक तक जाता है, कोर्ट तक जाता है और शादी नाकाम हो जाती है। तो इसका तदराक यही रोकथाम यही है कि लड़की जो है जब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखे तो सबसे पहले उसको ना घर में माँ बाप अगर अच्छे होंगे तो उसको दीनी तालीम अगर दी जाएगी ना तो बराबर वो चीज को समझेगी। जिन बच्चियों को दीनी तालीम से की तरबियत नहीं जाती, तहजीब नहीं सिखाई जाती, तो वो लड़कियां ही ऐसा करती है जो एडवांस माहौल में रहती है, घर मुस्लिमों के साथ रहती है। हाँ, तो वो बच्चियां जिनको मतलब दीन से कोई वो नहीं होता ना, तो उसके घर में सब मसले होते हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी लड़की होती है, दीनदार होती है, तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि बच्चा तालीम याफ्ता है, शौहर तालीम याफ्ता है या नहीं। मैं ऐसा बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो MA BEd है, उनके शौहर रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन ऐसा सब कुछ चल रहा है। इस वजह से चल रहा है क्योंकि वो समझदारी दिखाती है, वो हर बात शेयर करती है, और वो जो लड़का है उनका जो है हेल्प भी करता है। और एक मर्द जब तक का सर पे नहीं रहेगा तो कोई भी औरत तरक्की नहीं कर सकती। किसी समाज में कोई भी औरत खड़ी अगर है और वो कहेगी मैं अपने बल पे हूँ, तो मैं नहीं मान सकती। उसके पीछे या तो उसका बाप होगा, या भाई होगा, शौहर होगा, या उसका बेटा होगा, तभी वो समाज में आ सकती है। तो लड़कियों को मेरा यही पैगाम है कि जो आला तालीम जो है हासिल करके शादीशुदा जिंदगी में पहुंच चुकी है, तो थोड़ा सा इनके करीब रह करके अपने शौहरों की इज्जत दे और अपने घर के मसाइल को घर में हल करने की कोशिश करे, तो तलाक वगैरह का मसला जो है सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया। ये है मोमिन शाहीन मैडम, आपने बहुत अच्छे से तज्जिया किया। आपका उन्वान था आलिया तालीम याफ्ता की शादी कम तालीम याफ्ता से निकाह का बिगाड़ और तलाक का सबब कैसे बनती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम अगर इसमें वसात पैदा करना चाहें, भिवंडी शहर में हायर एजुकेशन के स्टडी सेंटर जो मेरी नॉलेज में ओपन यूनिवर्सिटीज़ के 3-4 हैं, जैसे यशवंत है, मौलाना आज़ाद हैं, इग्नू हैं, और क्लासेस भी यहाँ बहुत सारी चलती हैं। तो मैंने इन क्लासेस का भी विजिट किया है। मुझे ये जो मिला अब तक तकरीबन 70 से 80% लड़कियाँ हैं, और ज़्यादा हो सकती हैं, और 20% लड़के हैं। तो अगर हायर एजुकेशन 80% लड़कियां जो हासिल कर रही हैं, उनके लिए लड़के सिर्फ 20% हैं। अब भिवंडी के सिनेरियो में अगर हम ये बात करें तो 10वीं 12वीं के बाद ड्रॉप होने वाली बड़ी तादाद है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, लेकिन लड़कियों की कम है। या लड़कियां अगर ड्रॉप हुई तो बाद में अपनी एजुकेशन वो फासलाती निजाम में शुरू कर लेती हैं। यही वजह है कि ये 10वीं 12वीं वालों से ही भिवंडी के चारों तरफ फैले हुए वेयर हाउसेस को मैन पावर मिलता है। शॉर्ट और कम तनख्वाहों में उनके बड़े बड़े फैक्ट्रियां और कारखाने चल रहे हैं। लेकिन ये चीजें तलाक का सबब कैसे बनती हैं। हायर एजुकेटेड लड़की हो या लड़का हो, हम यही कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन लड़कियों में ज्यादा है भिवंडी शहर में, क्योंकि स्टडी सेंटर ये बता रहा है कि वहाँ 80% लड़कियां हैं और 20% लड़के हैं। वो हायर एजुकेटेड को ये कम पढ़ा लिखा लड़का, वो चाहे गरीब बिस्सी रिक्शा, हम ये नहीं कहती है कोई ऑक्यूपेशन या कोई भी काम गलत है, लेकिन उस हायर एजुकेशन के सामने ये कम है। फिर जिस घर में वो हायर एजुकेशन वाली लड़की जा रही है, उनके सास ससुर, इल्म क्या है, इल्म सदारत कलाम चाहता है। इल्म के अंदर अपनी एक ऐसी ट्रेजेडी है कि वो चाहता है उसकी बात सुनी जाए, उसकी मानी जाए। जबकि वो सास ससुर ये देख रहे हैं तो मेरे घर की बहू है, तेरे इल्म की हमको नहीं, तेरी खिदमत की, तेरी अच्छी बातों की, तेरे उम्र खानादारी की जरूरत है हमको। लेकिन वो हायर एजुकेटेड ये कहेगी कि मेरी चलनी चाहिए इस घर में, ये बुनियाद बिगाड़ शुरू हो जाता है। शौहर भी अगर उसी मायार का है, यही से एक मसला सामने आता है आदमी कुफू। इस्लाम का एक मसला है, दोनों में मसावात, मियाँ बीवी में मसावात, वो चाहे एजुकेशन की हो, उम्र की हो, खूबसूरती की हो, हसब नसब की हो, मालो दौलत की हो, शादी से पहले ये मसावात देखनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि उस 80% को 20% मौजूद है।
तो हमारे शहरियों को इस बात पर तवज्जो देनी होगी, ड्रॉप आउट के सिस्टम को रोकना होगा, लड़कों को भी हायर एजुकेशन के लिए आमादा करना, राहें हमवार करना होगा। वरना हाँ, बड़ी तालीम लेने के बाद भी ये की जरूरत है इस वक्त, तालीम इसमें तो बहुत मौलाना से बात। हाँ, तो वही हम ये डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर वगैरह पहले की बॉयज को बहुत मकसूद कम मिलती है सर, वो सब ये- लड़कियों के लिए तो 100% अच्छी है। से। बहुत अच्छा टॉपिक था। और अभी केस कर देती हैं तो लड़कियां तो लड़के बिना वजह फंस जाते हैं, उनके लिए सारे कानून है, लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। गलत है ना ये चीज। तो एक बात हम ये कहते चलेंगे कि लड़कियां हायर एजुकेशन तालीम याफ्ता हैं, लड़के भले ही कम हैं, तो क्या तालीम हम ये कह सकते हैं तालीम तलाक का सबब है? नहीं, तालीम तलाक का सबब नहीं है, बल्कि उस तालीम के मुताबिक उसकी तरबियत नहीं हुई है। इसलिए आपको एक वाकया मैं याद दिलाऊं, शायद ध्यान में आएगा। 1-1.5 साल पहले की बात है, यूपी के बरेली शरीफ का वाकया है। एक आलिमा, जिसको शायद 1 साल बाकी था आलिमा कंप्लीट होने में, एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ भागकर शादी कर दी है। हाँ, तालीम की कमी तो नहीं थी ये वहाँ। भी चल रहा था। या हमारे कॉलेजेस की बच्चियां पढ़े लिखे, वो हायर एजुकेटेड हैं, और आज अपनों में से गैरों में से किसी के साथ माँ बाप की सारी उम्मीदों पे खाक छान करके वो निकल जा रही हैं, और वो ऐसी एज को भी नहीं पहुंची हुई हैं जहां से उनको ये समझ में आ जाए कि इज़्दिवाजी जिंदगी क्या होती है। उससे पहले ही उनको अलग अलग जगहों पे और ऐसे अंदाज में पाया जा रहा, देखा जा रहा है, जिसको ये समाज कभी कबूल नहीं करता। तो हम ये कहना चाहेंगे आखिर में अपने पूरे कम्युनिटी से, समाज से, कि बच्चियों की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत, मॉरल एजुकेशन, अखलाकियात, क्योंकि तालीम का आगाज, मैं कल ही कहीं ये बात, तालीम का आगाज अगर माँ की गोद से होता है तो तरबियत का आगाज माँ की कोख से होता है। तालीम अगर एक दरख्त है, एक शजर है, तो तरबियत उसका फल है, और तालीम अगर फल है तो तरबियत उसकी मिठास है। और बिगाड़ तालीम की कमी से या जाती से नहीं, बल्कि अदम तरबियत की बुनियाद पर हो रहा है, और तलाक का सबब जो बन रहा है वो हायर एजुकेटेड की कम तालीम से पसे पर्दा ये चीज है कि अगर उनको एक्सेप्ट करना आ जाए, अफाम तफहीम आ जाए, दरगुजर करना, सब्र करना, ये चीज है तालीम। देखिए, सबसे बड़े आलिम इस रुए जमीन के जो गुजरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा तवाज़ो इनकिसारी आप ही की जात में पाई गई है। तो आला एजुकेशन होना, उनके अंदर तवाज़ो इनकिसारी, तालीम को कैसे बरतना है समाज में, किस तरीके से हमारी तालीम एक साले मुआशरा की तश्कील का सबब बने, ये तरबियत, ये तालीम भी बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। ये जरूरी है कि आज हम हायर एजुकेशन के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जूता, मोजा, बस्ता, यूनिफॉर्म, बड़ी बड़ी किताबें, ट्यूशन, होमवर्क, है ना, रबर, शपनर, पेन, सब तालीम के लिए, लेकिन उसकी तरबियत के लिए क्या है? हमने 0 से लेकर 18 साल, 20 साल तालीम पे खर्च किया। जी जी जी, तालीम और तरबियत अभी मौलाना ने जो गुफ्तगू की बहुत वसी तनाजुर में, दोनों जो है ना मैडम, ऐसा पैरेलल चलना चाहिए, रेलवे ट्रैक की तरह मुतवाज़ी। तालीम के साथ साथ तरबियत का होना अशद जरूरी है, वरना वो एक ऐसे पौधे के मानिंद हो जाएगा, आपने पौधा तो लगा दिया, उसमें पानी नहीं दे रहे, सूख जाएगा। वो तरबियत पे हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। तो बहुत अच्छा ये डिस्कस चल रहा था, और हम और आप जो इस वक्त शहर के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने भिवंडी की हम बात करें तो ऑफिशियल 9 लाख या अनऑफिशियल 12, 13, 14 लाख में से चंद लोगों को शहरी मसाइल पर कुछ डिस्कस, चर्चा और नागुफ्ताबे हालात को कंट्रोल और काबू में लाने के लिए ये वक्त हम लोग निकाल पाए। कि अल्लाह का एहसान, उसकी मजीद हमारे ऊपर एक नवाजिश है। हमारे बीच में हुमाना पीपल टू पीपल से ताल्लुक़ रखने वाले शाइस्ता मैडम मौजूद हैं। आपकी बड़ी अच्छी ज़मीनी पकड़ है, और आपके अंडर में दर्जनों, बल्कि मैं कहूँ 50-60 टीचर्स काम करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे उन्हीं में से मसाइल और उनके ज़रिए से जो फील्ड्स के मसाइल आप तक पहुँचते हैं। आपका उन्वान तो आपने लिया था मजहबी तालीम की कमी, इस कमी की बुनियाद पर तलाक क्यों हो रही, कैसे हो रही है, तो मैडम आप उस पर बात करने वाले हैं। आप अपने मौजू को थोड़ा वसी भी कर सकते हैं। ठीक है, शाइस्ता मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो टॉपिक लिया था मजहबी तालीम, तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू मारपीट, हस्बैंड वाइफ, मैरिटल अफेयर्स,
ये सारी चीजों से अगर हम सबसे पहले किसी को अगर दर्जा देना चाहेंगे तो वो है दीन की कमी। दीन की कमी हमारे अंदर है, इसलिए तलाक़ें जो है वो ज्यादा हो रही है। तलाक जो है वो शरीयत इस्लामी का हिस्सा है, लेकिन वो आखिरी हल है, ना कि पहला कदम। लेकिन जो हमारी कौम है वो सबसे पहला कदम जो उठाती है वो तलाक दे के उठा लेती है। और जो तलाक की डेफिनेशन है, एक्चुअल में हमारी कौम को पता ही नहीं है कि तलाक की असल वजह है क्या, तलाक की डेफिनेशन है क्या, तलाक किस तरीके से देनी चाहिए, तलाक क्यों देनी चाहिए, तलाक देने के बाद क्या होगा। इस मुद्दे को ना सोचे और समझे बिना जो तलाक़ें है, जैसे कि अगर मैं ट्रिपल तलाक की बात करूं, फौरन ट्रिपल तलाक दे देना, और तलाक देने वालों को ये पता ही नहीं है कि इस तलाक देने के बाद आगे होगा क्या। तो इसलिए वो दीन की कमी है। दीन की कमी इसलिए है क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे रहने वाले एतराफ में लोग, हमारे जो और भी साथी है, उन लोगों से हमें दीन की मालूमात नहीं मिली है। दीन की मालूमात हमें घर से सबसे पहले मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। जैसे कि दीन की कमी की वजह से अगर मैं बोलूं कि किसी लड़के ने अगर तलाक दे दिया, और मैं बोलूं क्या, मैं खुद भी देख रही हूँ कि 60% तलाकें ऐसी है जो तलाक देने के बाद पछता रही है कि हमने क्यों बोल दिया, और वो इस कंडीशन में बोल दे रही है कि आगे उनका कोई हल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो दीन की तालीम है, लड़का और लड़कियां दोनों में बराबर होनी चाहिए। इसके जो जिम्मेदार है, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो है उनकी माएँ और बाप। उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गलत और सही का फैसला, दीन की समझ, ये सारी चीजें अपने बच्चों को बताए। अपने बच्चों को बचपन से ही दीन की तालीम दे, ताकि वो इतने बड़े बड़े कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। और अगर हम इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हमारी जो भिवंडी या हमारे पूरे एतराफ में अगर देखा जाए, बहुत सारी ऐसी एनजीओज है, बहुत सारे जैसे कि दारुल कज़ा है, दारुल इफ्ता है, एनजीओज है, और उलमा इकराम है हमारे। इन लोगों को हम ऐसे जगह पे इन्वॉल्व करके, कुछ लेक्चरर्स इनके लिए भी होने चाहिए, जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो 3 एज से स्टार्ट होते हैं। उनको इन सारी चीजों की बिल्कुल समझ नहीं, जब 21-22 साल के होते हैं तो तब भी समझ नहीं है। उनको ये डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं मालूम है। मेरे खुद का एक सामने पड़ा हुआ एक तलाक का मसला है जो कि अभी रिसेंटली चल ही रहा है। गुस्से में आके शौहर ने तलाक दे दी, ट्रिपल तलाक। अब उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट, पता चला कि 1 हफ्ते के बाद कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब जो हस्बैंड है उसके पास क्या हल है कि वो उसको रख ले, उसकी वाइफ को रख ले। वो हल पूछने के लिए मदरसे में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उलमा के पास जा रहे हैं, लेकिन वो गुस्से में आने से पहले, इतना बड़ा वर्ड निकालने से पहले उसको उसकी डेफिनेशन पता नहीं थी। तो उसकी डेफिनेशन उसको पता होना बहुत जरूरी है। जबकि अब उसका हल जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस चला गया, क्योंकि एक बार में ट्रिपल तलाक दे दी गई। तो मैं अपनी बात को खत्म इससे करती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है भिवंडी के लोगों से और दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा, एनजीओ से, उलमा इकराम से, कि वो अलग अलग अपना अपना वक्त निकाल के जाके स्कूलों में, कॉलेजेस में, किसी जलसे में इस टॉपिक को 10-15 मिनट के लिए बताए कि कितना सीरियस ये जो तलाक का मुद्दा है वो कितना सीरियस है, और उसके ऊपर उनको समझाए। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। किसी ने कुछ और इसमें ऐड कर सकता है, कुछ मशवरा किसी का? बहुत अच्छा, शाइस्ता मैडम ने एकदम वो ज़मीनी हक़ाइक़। और एक बड़ी अहम बात इनके गुफ्तगू में ये आई कि 60% लोग तलाक के बाद पछता रहे हैं कि ये जज्बातियत में आकर, जल्दबाजी में आकर, या अपनी नाक ऊंची करने के, खानदानी ऊंच नीच के चक्कर में आकर के, गुस्से में आकर के इस तरह की हरकत कर बैठे, और अब वो पछता रहे कि क्या करें, कैसे करें। तो शरई किसी भी मसले को खिलवाड़ बना लेना, इतने बारीक मसले को जब चाहा यूज किया, और उसके बाद कैसे हम वापस बगैर किसी एक्शन के, यानी शरई एतबार से जो उसके हदूद और जो उसके तरीके कार हैं, अब लोग उसके लिए अपने मसालक को चेंज करने की बातें कर लेते हैं। अपने रिश्ते नाते और ख़ानदानों के जो उनकी रीत रवाज रही है उनसे हट करके कि किस तरीके से जो ये गलत कदम उठ गया है,
बगैर किसी सजा को मिले हुए मैं वापस एक्सेप्ट कर लूं। देखिए, एक बुनियादी चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए कि तलाक जब ये लफ्ज आता है तो हर एक के दिल दिमाग में एक नफरत सी उभरती है, लेकिन हमारे जहन में ये बात भी आनी चाहिए तलाक एक रहमत है। आप कहेंगे ये कैसे? अगर मियाँ बीवी के दरमियान जिंदगी नागुज़ीर हो जाए, एक साथ रहने में दोनों की जिंदगियों को खतरा बन जाए, एक साथ रहने में दोनों एक दूसरे की जान के खून के प्यासे हो जाए, एक साथ रहने में अगर दो खानदानों के आपस में टकराव की और शिद्दत पसंदी की नौबत आ जाए, आप देखिए दूसरी अक़वाम में शरई और मजहबी नुक्ते नजर से तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता कि फिर मार दो, जला दो, काट दो, कुछ भी कर दो, उससे आजादी, लेकिन शरीयत में ये चीज मौजूद है। दूसरी कौमों को फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस्लाम ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने आपको शरई तौर पर जो एक जवाज और एक मसले का हल दिया है कि जब दोनों तरफ की बैठक में नाकामी आ जाए, जब दोनों तरफ के काउंसलिंग और समझाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं और हर तरह से इस मोड़ पर आ जाएं कि एक साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती, तो इस्लाम ने वहां पर तलाक या खुला के मसले को रखा है ताकि वापस दोनों जिंदगियां अपने तौर पर दूसरे रिश्तों में बंध करके अच्छी तरह से गुजार सकें। तो हमारे जहन में ये कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर भी हद तक इम्कान उससे बचना, उसको रोकना समाज से। जैसे कि आपने बताया कि क्या क्या रीजन, और मैंने शुरू में ये बातें बतलाई थी, तकरीबन 30-40 रीजन, छोटे छोटे पॉइंट पर। एक पॉइंट उसमें मैंने नोट कर सका हूं, अभी लॉकडाउन पीरियड में बीवी ने शौहर को बच्चे के लिए डायपर लाने के लिए कहा। कारोबार बंद थे, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए बेचारे, खाने के वांदे पड़ गए थे। शौहर ने कुछ थोड़ा सा ला करके दिया कि इससे काम चलाओ, काम शुरू हो जाए, या पैसा कहीं से और आए तो मैं मजीद ला के देता हूँ। बीवी की जिद पे मुझे पूरा पैकेट चाहिए। शौहर उस पोजीशन में नहीं था कि पूरा पैकेट लाकर दे, और ये तलाक का सबब बन गया। इल्मी और जिहादत की बातें हैं ये सब। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। तो अगर हर कई तरह की फैकल्टीज में हम और आप सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं, मैंने पहले कहा चाहे एजुकेशन हो, सेहत के मसाइल हो, हायर एजुकेशन के, नौकरी के हो, पॉलिटिक्स के हो, कई तरह के मसाइल में हम सब एक्टिव काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये सुलगता हुआ बर्निंग इशू, इस पर कुछ काम करने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें और आपको तौफीक दी, इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। और अनकरीब हमारी ये कोशिश भी होगी कि यही करीब आस पास में हम एक काउंसलिंग सेंटर कायम करें कि शादी से पहले भी लोगों के जहन में ये बात आए इज़्दिवाजी जिंदगी क्या होती है, कि नई जिंदगी के दहलीज पर जब आप कदम रखने जा रहे हैं तो किस तरह के चैलेंजेस और मसाइल आपके सामने आएंगे, वो लड़की हो या लड़का हो। कि लड़की जब तक माँ के घर में होती है तब तक गमले में खिले हुए एक नन्हे मासूम पौधे में खिली हुई एक कली होती है, लेकिन जब वो ससुराल में पहुंच गई तो अर्ज़े संगलात की एक कांटेदार झाड़ियां बन जाती है। उनके इस तरह की तरबियत भी होनी जरूरी है। तो इंशाअल्लाह इस तरह के हालात पर हम कंट्रोल पाएंगे। एक चीज मैं ये भी नोटिस जी। की हूँ, अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा उसका रोजगार है, तो वहाँ पर अगर कुछ मसला होता है तो ये लड़की घर वाले रहते हैं ना, अपनी बेटी को प्रेशर बना करके, समझा करके, गलती लेकर के उसको वहाँ रहने को मिलते हैं, है ना। हाँ। और अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कमा रही है, तो अपनी लड़की को सोचते कैसे भी छुटकारा करके यहाँ से लेके जाओ, दोनों वाला करने की कोशिश करते हैं। ये चीज मैं देखी हूँ। अफहाम और तफहीम का रास्ता नहीं तलाश कर, मतलब माँ बाप खुद इसमें मतलब मुलविस हर वाले को बहुत ज्यादा माँ बाप को पहले तालीम देनी चाहिए। ये बहुत एक दुखती रग आपने छेड़ दी जो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मैंने सरसरी में एक बात बतलाई थी, कारोबार बना लेना तलाक को, अभी आपने बताया खावटी का डिमांड कि शौहर को 498 में फंसाओ, शौहर के 10 लोगों को और फंसा दिया जाए। घर वालों की लाइफ खराब कर दी। यानी बिगाड़ सिर्फ शौहर से हुआ, लेकिन शौहर के 10 लोगों को और उसमें डाल दिया गया, और फिर वो अपने घर आकर मैके में बैठ जाए। फिर मैके में जो उसके भाई या बहू मौजूद, उसकी भावज मौजूद है, वो बेचारे वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की तवज्जो और रुझान बेटी की तरफ है। अब बेटी को वहाँ सारे फैसिलिटीज मिलने के लिए बहू को तंग कर दिया जाता है, वो कहीं और शिफ्ट होने पे मजबूर हो जाती है। अब बेटी उस घर की जिम्मेदार है, माँ बाप के भी
अखराजात की जिम्मेदार वो बेटी हो जाती है, फिर वो बेटी घर कैसे चला रही है, सिर्फ खावटी की बुनियाद पर, या कहाँ से कैसे पैसे कमा के ला रही है, घर चला रही है, माँ बाप दानिस्ता तौर पर सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहते हैं, नहीं बोल सकते कि वही घर चला रही है, कैसे उसको बोले। तो ये एक बहुत बड़ी इफ्ताद है। अहलियान शहर, दानिशमंदों को, जिम्मेदारान को इस पर गौर करना होगा, और इसमें पढ़े लिखे लोग, आला समाज के लोग, एजुकेटेड लोग, मैं ये कहूँगा इसमें टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स और वकला भी मौजूद हैं। 99% ना पढ़े लिखे लोग का तलाक हो रहा है, जो कम पढ़े लिखे लोग का तलाक हो ही नहीं रहा है, ये भी मैं देखी। मैनेज कर लीजिए। हाँ, वो मैनेज कर ले रहे हैं, ये लोग तो- ज्यादा होशियार बन रहे हैं, आइए और लड़की कमा रही है तो कुछ ज्यादा ही ना। हम डिस्कस ये कर रहे हैं, जो इसके मौज़ूआत हैं, जो टॉपिक्स हैं, अभी हम ज्यादा किसी समाज, कौम या किसी एक फैकल्टीज पर आर्गुमेंट नहीं, तनकीद इस्लाह की हद तक करेंगे, और कोशिश ये करेंगे आइंदा जो लाए अमल हमारा ये स्टेज प्रोग्राम या कम्युनिटी वाइज अलग अलग इलाकों में जाकर काउंसलिंग या टीचर्स के प्रोग्राम, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चे और बच्चों के काउंसलिंग के साथ, उनके साथ जाकर के प्रोग्राम और एक काउंसलिंग सेंटर के क़याम की भी कोशिश इंशाअल्लाह। आइए आज की इस डिस्कस में हम आखिरी कड़ी की तरफ पहुंचते हैं। आखिरी डिस्कस में हमारे बीच में है नवीद अहमद साहब। डिस्कस हुआ है और अहम मौज़ूआत पर एक संजीदा गुफ्तगू हुई है। हम चाहते हैं अगला हमारा जो इख्तितामी आपसे रिलेटेड जो टॉपिक है, हो गया 5 उस सिलसिले में आप हमारे बीच में नवीद भाई हैं जो एक सोशल वर्क है, ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़े हुए हैं, वो आप अपने तजर्बात और ख्यालात पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ नवीद भाई कि आप अपनी बात रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवीद इकबाल शेख है। मैं वैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स में जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो जैसे कि समाज में आप देख रहे हो कि तलाक के जो है तादाद कुछ बढ़ती जा रही है और रिश्ते ज़्यादा करके टूट रहे हैं। अब रिश्ते टूटने का रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बात मैंने नोटिस किया है कि जैसे कि सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, यूट्यूब पे एक पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अभी जो है फिलहाल जो है वो बैन कर दिया गया, लेकिन वो टुकड़ों की शक्ल में अभी थोड़े थोड़े क्लिप आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो है पाकिस्तानी ड्रामा में ये देखा गया है कि उसमें जो है ना कि तलाक देना और दूसरी शादी करना ये बहुत आम है। अब जैसे कि हम देखते हैं कोई रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वैसे अपन करने की कोशिश करते हो सकता है कि समाज में कुछ वीडियो से, और जैसे कि मूवी वगैरह देखते थे, तो मूवी वगैरह देखने पे भी थोड़ा थोड़ा असर होता है ना कि साउथ की मूवी देख लिया और इसको मार दिया। तो कुछ तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह का भी एक हो सकता है ये रीजन तलाक के ऊपर से, और कुछ जो है समाज में ना समझी की वजह से ये जो है तादाद बढ़ती जा रही है। अब तलाक किसको देना है और कब देना है ये ना समझ, मतलब किसी को नहीं पता है ये तलाक कब देना है और क्यों देना है। बस तलाक देना, और जो है तलाक जो है अल्लाह को नागवार है, नापसंद है। तलाक की कुछ वजह होती है, अब लोगों को मालूम ही नहीं है। और दूसरे तो आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पे अपना एक मजाक भी बनाया जा रहा है तलाक के ऊपर से, और जो है उसको बहुत बड़ा इशू भी बनाया गया था तलाक के ऊपर। तो मैं ये चाहूंगा कि तलाक के बारे में कुछ समझे लोग कि तलाक कब देना है और किसको देना है, इसके क्या किन हालात में देना है। ये बात तो देना ही नहीं है, हाँ, ये सोचे जहन। देना ही नहीं। जब हालात इतने पेचीदा हो जाए कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब तलाक का तरीका जो है उसके मुताबिक दिया जाए। मैं उस पर कुछ कहना चाहता था, जो मोहतरमा गई किसा उन्होंने कहा ना, हाँ, कि तलाक का असल में हमारे माशरे में तलाक का तरीका ही नहीं मालूम है। तलाक अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा चीजों में है ना, सबसे जायज चीजों में, हाँ, जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद फरमाया गया है तलाक। और ये जुमले पे आप गौर कीजिए, सबसे ज्यादा नापसंद फरमाया गया। तो तलाक ऐसी हालात में दिया जाना चाहिए जब कोई रास्ता ना निकले, लेकिन उसके बाद उसका तरीका है भाई, तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुखल्लिस। ठीक हो ना? आप 3 मरहलों में उसको दिया जाता है। उससे पहले के भी मराहिल हैं आपके। बीवी से आप
गुफ्त शनीद करना बंद कर दें, उससे कम्युनिकेशन बंद कर दें, अपना रवैया सख्त कर दें, उससे भी बाद आप बिस्तर पे उसको अलग कर दें, यहाँ तक भी बात नहीं बनी तब उसको आप पहला तलाक दें जो तलाक रजई कहलाता है। उस तलाक में बीवी से आपका निकाह नहीं टूटेगा, आप उससे फिर रुजू हो सकते हैं। वहां पर भी अगर वो राह रास्त पर नहीं आती है तब आप उसको दूसरा तलाक जो भी मुद्दत उसकी मुअय्यना है उसको तलाक बाइन देंगे। उस सूरत में आपका उससे तलाक निकाह टूट जाएगा। आप अगर फिर रुजू करना चाहें तो उससे आपको निकाह करना होगा। उसके बाद भी अगर उसकी हालत में सुधार नहीं आता, वो राह रास्त पर नहीं आती, तब आप उसको अब तीसरा तलाक जो ट्रिपल तलाक जो बोलते चिल्लाते हैं, तब तीसरा तलाक आप उसको दीजिए जिसे तलाक मुगल्लिज़ा कहा जाता है। अब आप उसके साथ फिर सिवाय हलाला के अब आपके लिए वो हलाल नहीं। इतने मराहिल उसके हैं तब तलाक दिया जाए। पहली बात तो वो नापसंदीदा ही अल्लाह ने उसको क्या चीजों में किया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से होते गए उसको अलग करो, बात मत करो, तरीका अपना बदल दो, उसके साथ रवैया बदल दो, सबके बाद फिर एक तलाक दो। इतने मद्दे में कुछ तो उसमें सुधार आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ बस पट 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 तीन तलाक दे दी। तरीका ही गलत है। उन्होंने जो कहा वो बहुत मुत्तफिक बात है कि किसी भी चीज का प्रोसेस पहले समझना चाहिए। क्या है, पूरी पूरी उम्र गुजर जाती, लोग बूढ़े हो गए, मरने के करीब कब्र में, पहले को तलाक का तरीका ही नहीं मालूम है। और फिर गैर मुस्लिम इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर हम लोगों को फिर वो लोग निशाना बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। उनको क्या पता है अभी ट्रिपल तलाक मैं तो जब ये ट्रिपल तलाक सुनने में आ रहा था अखबारात में, समझ आ रही ये ट्रिपल तलाक का क्या मतलब है, ट्रिपल क्या रख रहे हैं। तीन तलाक भाई तलाक तो एक दिया जाता है पहले, फिर दूसरा दिया जाता है, फिर तीसरा दिया जाता है। उनको तो यही मालूम कि हमारे यहाँ उसी तरीके को अपना लिया गया, तलाक कह दिया, फिर सब हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमको पहले असल में बात फिर वहीं से घूम के आती है कि हमारे जिंदगी में दीन का होना बहुत जरूरी है। दीनदारी बहुत जरूरी है। बच्चियां अपने घरों में जब हैं उस वक्त वालिदैन उनको दीन का माहौल दें, दीन के सांचे में वहां से डालें। तो जब दीनदार हो जाएगा ना, मर्द हो या औरत हो, तो फिर वो उससे कोई गलत काम ही नहीं होगा यार। उसके दिल में जब खशियत इलाही जब पैदा होती है ना मौलाना, तो फिर आदमी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बस खौफ होना चाहिए दिल में अल्लाह। तो नहीं, आजकल की जो जनरेशन है वो ड्रीम लाइफ जीना चाहती है। कुछ वजह वो भी हो सकती है कि उसको ड्रीम लाइफ जो देखती है वो स्क्रीन पर शायद वो नहीं दे रहा है। और अपन जो शहर में रहते हैं, फिलहाल यहाँ पे मुंबई में बहुत सारी 5 स्टार होटल है, ढाबे है। एक ढाबे का चलन है ना, मुंबई वाले और भिवंडी वाले एक ढाबे का चलन है। 20 साल पहले कुछ नहीं था। हाँ, तो ये ढाबे की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, और ढाबे में आप गए हो तो आपको पता ही है कि कितना कॉस्ट आता है। तो अब वो बेचारा रिक्शा चलाने वाला है या अदर कोई छोटा मोटा काम करने वाला, छोटा बिजनेस वाला है, या उसको टाइम नहीं भी मिला या उसके पास उतना वो फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो ढाबा वगैरह नहीं ले जा सकता है। उसको लाइफ स्टाइल वो नहीं उसको कर सकता है। तो कुछ वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, ये बातें आ चुकी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम वापस क्लोज करते हैं इस पॉइंट को आज के। बहुत सारे मौज़ूआत पर डिस्कस हुई और कुछ शरीयत के बड़े बारीक मसाइल में भी थोड़ी सी गुफ्तगू मखसूस सर ने की है, जो यकीनन अहले इल्म बल्कि उलमा के बीच में डिस्कस करने वाली बातें हैं। मुमकिन है कि उलमाए किराम मुफ्तियान आज़म तक ये बातें पहुँची, तो उसमें अगर कहीं कोई लफ्ज़ होगी तो इस्लाह का भी हम उनसे तकाजा करेंगे। और मकसद हमारा मजमूई तौर पर यही है कि यहाँ पर सब सोशल वर्कर और समाज और ज़मीन से जुड़े हुए अफराद हम डिस्कस कर रहे थे, वो मौज़ूआत या उन पॉइंट्स पर गौर कर रहे थे जो हमारे बीच में अक्सर आते हैं, उनका डिस्कस, जिनका हमारी एक्टिविटीज़ से कुछ ना कुछ रिश्ता होता है कि वह असबाब क्या और कैसे रोका जाए। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस लाइन से भी कोशिश करेंगे। मैंने अभी रवा में बात कही थी, पेरेंट्स तक पहुंचना, टीचर्स तक पहुंचना, बच्चों की काउंसलिंग क्लासेस में पहुंचकर करना, या जो प्रोग्राम शहर में होते हैं उन प्रोग्राम्स में पहुंचकर इस मौजू पर 2-5 मिनट की गुफ्तगू, एक टॉपिक वो जहां और सारी गुफ्तगू होती हैं कई एक फैकल्टीज पर, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर में मैं एक बात कह के खत्म करूं कि तलाक का एक रीजन ये भी है, भिवंडी शहर में टीबी की बीमारी महाराष्ट्र में तकरीबन दीगर
मुस्लिम अक्सरियती शहरों में सबसे ज्यादा है भिवंडी में। और अफसोस इस बात का नहीं, भिवंडी में ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जिस उम्र में सबसे ज्यादा टीबी हो रहा है वो एज ग्रुप भिवंडी में 15 से 25 साल के बीच में, नौजवान लड़कों में भी लड़कियों में भी, और लड़कों से ज्यादा लड़कियों में हो रहा है। और लड़कियों में हो रहा है, मैं धीरे धीरे उस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि इससे तलाक से क्या लेना देना है। कि बच्चियों में अगर ये बीमारी आती है, उसके सिम्टम दिखते हैं, अलामात दिखती हैं, तो घर वाले उसको छुपाते हैं। बेटी का मामला है, बाहर नहीं जानी चाहिए बात। और फिर बेटी की वो उम्र हो गई, मैंने एज ग्रुप बताया 25 साल तक, अब उसकी शादी भी होनी है। उसकी बीमारी, उसके सिम्टम अलामात होने के बाद भी उसको छुपाया गया, रिश्ते तय कर दिए गए। माँ बाप ने तो नाजो नियम से उसको पाला था, लेकिन जब वो ससुराल में शादी होकर के चली गई, उसकी बीमारी अब वहां जब जाहिर हो गई, तो वो जो शौहर है, जो सास ससुर है, वो माँ बाप की तरह आपको अटेंड करने वाले नहीं है। वहां तो आपको घर के काम भी देखने हैं। सास ससुर के सामने आप दुल्हन बन के गए, बीमार मरीज बनकर नहीं गए हैं। लेकिन जब वहां पर ये चीज जाहिर हो जाती है, ये बीमारी आपके पास है, और जब उनके यहाँ जाकर आपका चेकअप होता है, टीबी डिटेक्ट होता है, और डॉक्टर ये बोलता है ये 1 साल पहले से है, 6 महीना पहले से है, शादी तो आपकी 2 महीना पहले हुई है, लेकिन बीमारी इतने दिनों पहले से है। फिर दोनों रिश्तों में, ससुराल और मैके में, ये इंतशार शुरू होता है। छुपा करके एक बीमार को, और ऐसी बीमारी जिसको टीबी थी, आपने शादी कर दी, हमको बताया भी नहीं, हमको धोखा दिया, आपकी बेटी की वजह से हमें और हमारे बेटे को भी ये बीमारी हो सकती है। फिर वो रिश्ता खत्म कर दिया जाता है, और बेटी तलाक या खुला या छोड़ करके मैके में आके बैठ जाती है। ये भी एक बड़ा सबब भिवंडी में और कई जगहों पर ये रीजन सामने आ चुका है। लेकिन तो मौलाना साहब, ये टीबी की बीमारी इतनी घातक भी नहीं है, और ये एक दूसरे से फैलती भी नहीं। और हाँ, तो हमारा डिस्कस इस बात पर हो रहा है कि तलाक के असबाब, तलाक के असबाब में ये चीज भी है। हाँ, टीबी की बीमारी क्या, कैसे वो ये चीज अपने को रखना है। वो कोई बहुत बड़ा मार्ग नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन लोगों के तो जहन में, हाँ, हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, या जो भी कम्युनिटी से या इस एज ग्रुप से कहीं ना कहीं टच रखते हैं, उनके अंदर अगर सिम्टम अलामात पाए जाए टीबी वाले, मुफ्त में सारा चेकअप, सारा इलाज होता है, बड़ी आसानी से होता है। जितनी जल्दी उसका डिटेक्शन हो जाए, फौरन इलाज शुरू हो जाए, तो उसका फैलाव रुक जाता है, इलाज भी जल्दी और आसानी से हो जाता है। लेकिन लापरवाही की गई, अगर वो कैट 2 और 3 में गया, MDR XDR में गया, तो बेचारे की जिंदगी फिर अजीरन बन जाती है, उसका फैलाव भी तेजी से बढ़ जाता है, दवाएं भी उसकी लाखों में हो जाती हैं, फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर माँ बाप जो अच्छे खासे थे, वो उसके इलाज में बीमार हो जाते हैं। तो खुदारा हमारे नौजवान ग्रुप में आपने कहा कि लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश तो हम रखते हैं, लेकिन मेहनत कितनी कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं। एक तो शिकायतें ये आ रही हैं, लड़के वेयर हाउस में जाकर कमा रहे हैं, लड़कियों के पीछे खर्च कर रहे हैं, घर तक उनके पैसे पेमेंट आ ही नहीं रही। लग्जरियस लाइफ तो बड़े मसाइल हैं हमारे शहर के। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आलम टीवी के चैनल के माध्यम से आज डिस्कस हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है शहरियों तक एक बात जाएगी, तो और फैकल्टीज से और भी अफराद की जानिब से, और हमें ये उम्मीद है कि शहर के और मुअज़्ज़ज़ तबक़ात की जानिब से भी कांटेक्ट और रब्ता किया जाए, या वो हमसे करेंगे। एरिया वाइज जाकर के भी ये अवेयरनेस और बेदारी के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह करेंगे, कर सकते हैं, चाहे कॉलेजेस में हो, वो चाहे पॉलिटिशियन के ऑफिसेस में हो, चाहे वो क्लासेस में हो, चाहे NGOs के बीच में हो, स्कूलों में हो, लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम सब मिल करके ये कोशिश करेंगे कि शहर से ये जो तलाक की बढ़ती शरह है उसको कैसे रोका जाए, और एक खुशगवार माहौल में इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे पनपे और आगे बढ़े। बच्चों की ज़िंदगी अक्सर बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जब मियाँ बीवी में इख्तलाफ और इंतशार होता है, उनकी ज़िंदगी बेचारों की अधूरी सी हो जाती है। तो आइए हम इस शुक्रिया के साथ आलम टीवी के कि आपने अपने ऑफिस में बुलाकर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे स्टेज पर आपने हम सबको कुछ बातें शेयर करने का, डिस्कस करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हम आइंदा भी इस तरह के कुछ मौज़ूआत को लेकर और आपके टीवी चैनल के माध्यम से आवाम तक पहुंचने की कोशिश करें। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।